But before starting this video or strings, I'm to tell you about an amazing function in Python, which will help us throughout all our journey. The name of this function is type, and this is the syntax of this type function. So in this type function, we will pass our data as parameter inside these brackets, and the Python will tell us the data type of the data, whatever we pass as argument. Okay. So like inside in these brackets, I am writing in inverted commas ABC. So we all know that whatever we write inside the inverted commas is taken as string, is considered as a string in Python. So let's see what happens here. So yeah, it has returned that the class of this data is str, which means string. So in the same way, if you write 54, it will return that the class of this data 54 is integer. So this is just a simple function which tells us about the data type of the data we put inside these brackets. So let's start the video with strings. String is a sequence type data type. What is the meaning of sequence? So sequence is basically just a collection of similar type of data. And in Python, we all know that whatever we write inside inverted commas is considered as string. Be it letters, be it characters, be it numbers, be it special characters, be it punctuation marks, whatever we write inside inverted commas is known as strings. What if one morning I woke up and I want to extract this 98 from this entire string? So guess how can we do that? So for that, we need to traverse the complete string. We need to get the index of that particular 98 number where it is present inside the string. इसमें सिंपल सा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं मेरे को 98 को एक्सट्रैक्ट करना है इस पूरे स्ट्रिंग में से, then for that I need to get the index of this 9 and 8 from this entire string. कि इस string के अंदर 9 जो नंबर है वो कौन से इंडेक्स पे है और 8 जो नंबर है वो कौन से इंडेक्स पे है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंडेक्सिंग सीखनी पड़ेगी कि पाइथन में इंडेक्सिंग होती आखिर कर कैसे है. Let's study this thing. Okay. So let's start. तो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक का नाम है ABCD, एक का नाम है ABC. या फिर छोड़िए, हम लेट्स टेक दिस एंटायर स्ट्रिंग ओनली. या सो हियर वी आर, एंड इसे हम स्टोर कर लेते हैं स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग. ओके. तो अगर हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं नंबर 9 और 8, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस स्ट्रिंग के अंदर कौन से इंडेक्स पे हैं 9 और 8 एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो सबसे पहले मुझे आपको बतानी पड़ेगी इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है. तो इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कोई दिया हुआ है नंबर, लिस्ट आपको दी हुई है 1 2 3 4 5. तो आप ये जानते हैं ये एक लिस्ट है, हमने एक लिस्ट बना दी 1 2 3 4 5. तो 1 क्या है, पहली वैल्यू है इस लिस्ट के अंदर, 2 है दूसरी वैल्यू, 3 है तीसरी वैल्यू. तो ये आम आदमी होगा तो बोलेगा इंडेक्स क्या होगा तब, अगर 1 पहली वैल्यू इस लिस्ट के अंदर तो इसका इंडेक्स 1 होगा, 2 दूसरी वैल्यू है इस लिस्ट के अंदर तो इसका इंडेक्स 2 होगा. लेकिन कंप्यूटर के अंदर, पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. जिसका मतलब अगर यहाँ पे दिया हुआ है A, B, C, D, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए तो एक पहले इंडेक्स पे होगा, ए का इंडेक्स 1 होगा, बी का इंडेक्स 2 होगा. लेकिन पाइथन के लिए इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. तो पाइथन क्या कंसिडर करेगा कि ए है 0th इंडेक्स पे, ए का इंडेक्स 0 है, बी का इंडेक्स है 1, सी का इंडेक्स है 2 और डी का इंडेक्स है 3. Just remember this thing, that the indexing in Python starts from 0, not from 1. In real life, we take the indexing to be starting from 1, but in Python, the interpreter starts the indexing from 0 only. So just remember this thing. तो अगर देखा जाए हमें जो स्ट्रिंग है ए बी सी, हमें ये जो स्ट्रिंग है ABC 98 हैशटैग डॉलर दिस, तो इस स्ट्रिंग के अंदर 9 कौन से इंडेक्स पे है, तो ए का इंडेक्स हो गया 0, बी का इंडेक्स हो गया 1, सी का इंडेक्स हो गया 2, 9 का इंडेक्स क्या हुआ फिर 3. अगर नॉर्मली हम देखें तो ए का इंडेक्स 1, बी का 2, सी का 3, 9 का 4. लेकिन जब हम पाइथन में देखेंगे तो पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से. तो ए का इंडेक्स हुआ 1, ए का इंडेक्स हुआ 0, बी का इंडेक्स हुआ 1, सी का इंडेक्स हुआ 2 और 9 का इंडेक्स पाइथन कंसिडर करेगा एज 3 और 8 का इंडेक्स पाइथन कंसिडर करेगा 4, हैशटैग का इंडेक्स होगा 5, डॉलर का इंडेक्स होगा 6 और इस पंक्चुएशन मार्क जो है इसका इंडेक्स होगा 6. ओके, 1 2 3 4 5 6 8. ओके नहीं, इस पंक्चुएशन मार्क का इंडेक्स होगा 7. ठीक. अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है. अब हमें पता चल गया कि 9 कौन से इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए का इंडेक्स हुआ 0, बी का इंडेक्स हुआ 1, सी का 2, 9 कौन से इंडेक्स पे है 3, 8 कौन से इंडेक्स पे है 4, हैशटैग कौन से इंडेक्स पे है 5, डॉलर कौन से इंडेक्स पे है 6 और ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है एंडिंग कोलन, इसका इंडेक्स है 7. तो ये हमने दे दिया, इंडेक्सिंग कर दी सबकी.
कि हम अब हमें पता चलिए एक 0th इंडेक्स पे है, 9 3rd इंडेक्स पे, 8 4th इंडेक्स पे है। अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है इस स्ट्रिंग में से। मैं चाहता हूँ मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से 98 निकल के आ जाए। तो अगर आपको एक स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है और तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, उस वो स्ट्रिंग जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उस वेरिएबल का पहले नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग है, ठीक। तो पहले आप नाम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे उसका इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इंडेक्स 3 है 9 का, तो हमें 9 मिल गया यहाँ से। दूसरी चीज़ हमें 8 भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे मैं वापस से वेरिएबल नेम लिखूंगा जिस वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक। उसके बाद 8 का इंडेक्स लेंगे। 8 की इंडेक्स वैल्यू है 4, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4। अब मुझे इसी चीज़ को प्रिंट करा लेना है, बस यहाँ पे मैं प्रिंट का स्टेटमेंट डाल दे रहा हूँ। प्रिंट स्ट्रिंग 3 कॉमा स्ट्रिंग 4। स्ट्रिंग के अंदर का जो 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, और स्ट्रिंग के अंदर जो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। और स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल का नाम है। ओके, लेट्स सी दिस, सीधा आउटपुट देखिए, यहाँ पे 98 प्रिंट कर दिया, 9 एंड 8। अब इसी इसी तरीके से हम हैशटैग और डॉलर भी प्रिंट करा सकते हैं। हैशटैग को प्रिंट करने का तरीका क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा इंडेक्स, 5th इंडेक्स। और डॉलर प्रिंट करना तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सा इंडेक्स, 6th इंडेक्स। और उसी तरीके से अगर हमें ये एंडिंग कोलन चाहिए तो इसकी लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और इंडेक्स वाली क्या है डॉलर की, 7, अरे सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स की 7 एंडिंग, ठीक। 3 4 5 6 7 तो हमें आना चाहिए 9 8 प्रिंट करना चाहिए, हैशटैग डॉलर और ये सेमीकोलन, ठीक। ये हमें प्रिंट करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। So we can see here that we have got the output as 9 8 hashtag dollar and ending colon. Okay. तो सोचिए मेरे को 9 से लेके यहाँ तक एंडिंग कोलन तक जाना था, तो इसके लिए मुझे इतना सारा लिखना पड़ा। व्हाट इफ देयर इज अ वे कि मैं एक वर्ड का प्रोग्राम लिखूँ, एक वर्ड बस लिखूँ मैं, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ जिससे अचानक से, जिससे अपने आप 99 से लेके एंडिंग कोलन तक जो भी है, एंड तक जो भी है वो सब प्रिंट हो जाए अपने आप। तो इसे कहा जाता है स्ट्रिपिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमें जो भी वैल्यूज चाहिए उसका हम इंडेक्स डाल देंगे, और उसके बाद एंड कहाँ पे करना है, अगर मुझे यहाँ पे सेमीकोलन ये जो है वहाँ पे एंड करना है तो मैं इसका इंडेक्स +1 करके डालूंगा। सी वेट यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, लेट मी गो स्ट्रेट टू दिस थिंग। यहाँ पे हमें पता चला कि ए बी सी, ए का इंडेक्स ये है और बी का ये 98 का ऐसे ऐसे इंडेक्स है, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की स्ट्रिपिंग करनी है तो स्ट्रिपिंग करने का एक तरीका होता है एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर ये एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है जिसका नाम स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है ABC98 हैशटैग डॉलर कोलन, इसमें ये लिखा हुआ है। अब आपको चाहिए इसका एक पर्टिकुलर पार्ट, इस स्ट्रिंग का, इसकी जो वैल्यू दी हुई है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे बोला जाता है सब स्ट्रिंग। ये पूरी बड़ी सी एक स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलेंगे, सब स्ट्रिंग। तो हमें इस स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग जो कि इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट है वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल नेम, ठीक। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टार्टिंग इंडेक्स डालेंगे कि हमें कौन सी इंडेक्स से शुरुआत करनी है, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर हमें 9 से शुरुआत करनी है, 9 से लेकर एंडिंग कोलन तक हमें चाहिए, जो भी है वो प्रिंट कर दे, तो यहाँ पे 9 का जो इंडेक्स है वो हम डालेंगे 3, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स। उसके बाद एक कोलन डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे एंडिंग कहाँ पे करनी है, एंडिंग हमें यहाँ पे करनी है, यहाँ सेमी कोलन है यहाँ पे जो सॉरी एंडिंग कोलन जो है हमें यहाँ तक जाना है। तो एंडिंग कोलन का जो इंडेक्स है इसे लिखने का एक तरीका ये होता है कि स्टार्ट इंडेक्स तो आपको जैसा दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर वैसा लिखना है, जो इंडेक्स वैल्यू दी हुई है वैसी डालनी है। लेकिन जो एंडिंग वाला है यहाँ पे, जैसे मेरे को एंडिंग कोलन तक जाना है, इसका इंडेक्स 7 है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो एंड इंडेक्स है उसमें हम +1 करते हैं, ताकि ये यहाँ, क्योंकि इसका एक तरीका होता है, आप जो भी देंगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे एंड में जो कोलन के बाद जो भी वैल्यू देंगे उसके एक पहले तक जाएगा। ये तरीका है, इसका एक फॉर्मेट होता है स्ट्रिपिंग का, कि जो भी हम कोलन के बाद जो वैल्यू देंगे उसके एक पहले तक आता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 7 दे दें, जैसे हम यहाँ पे दे दें डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रिंग जो है वेरिएबल का नाम, हमें कहाँ से शुरू करना है, 98 से, तो 9 का है 3 और हमें जाना यहाँ तक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फॉर्मेट होता है इसका कि पहले मैं दिखाता हूँ 3 से 7 तक, ठीक। यहाँ पे मैंने 3 से 7 तक डाला, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिपिंग का एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट के थ्रू ये काम करता है कि 7 अगर आपने कोलन के बाद डाला तो ये 6 तक ही जाएगा, 6 तक जो भी है, 6 पे डॉलर है तो ये डॉलर तक ही प्रिंट करेगा, ये एक पहले तक चलता है।
इसीलिए हमेशा हमें इंडेक्स की वैल्यू +1 करके देनी पड़ती है इस कंडीशन में, ताकि ये उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक जाए जहाँ तक हम जाना भेजना चाहते हैं। ठीक, और जैसे यहाँ पे 3:7 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग 3:8 जो कि है हमारा एक्चुअल जो हम चाहते हैं डॉलर ये एंडिंग कोलन तक प्रिंट करें। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज आउटपुट्स एंड लेट्स थोड़ा सेपरेट कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाए दोनों अलग अलग आउटपुट्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 7 तक डाला, तो ये फॉर्मेट कहाँ तक चला, इनका जो लूप था चलने का ट्रैवर्सिंग का, ये 98 से शुरू हुआ, इंडेक्स नंबर 3 से शुरू हुआ और डॉलर तक गया, इंडेक्स नंबर 6 तक। लेकिन हमने यहाँ पे डाला 7 है, लेकिन ये गया इंडेक्स नंबर 6 तक। तो ये चीज़ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट इंडेक्स वैल्यू -1 तक चलता है। आप यहाँ कोलोन के बाद जो भी डालेंगे उसके एक पहले तक चलेगा। तो इसी तरीके से, तो इसीलिए हमें एक +1 करके वैल्यू डालनी पड़ती है इंडेक्स की, हम जो भी डालें यहाँ पे। ठीक, तो ये तो हुआ स्ट्रिंग का स्ट्रिपिंग करना। तो इसका एक सिंपल सा एक तरीका और है। अगर आपको एंड तक चाहिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके, मतलब मैं चाहता हूँ मुझे प्रिंट कर दे मैं चाहता हूँ कि मुझे 98 से लेके $कोलोन तक जाए। तो इसका एक क्योंकि मतलब मैं बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एंड तक जाए, 9 से शुरू और एंड तक जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, जितनी भी वैल्यूज है सब प्रिंट हो। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका होता है, आपको यहाँ एंडिंग इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप लिख दो यहाँ पे 3, जहाँ से आपको शुरू करना स्टार्टिंग, और उसके बाद सिंपल सा छोड़ दो 3 से लेके एंड तक। ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है कोलोन के बाद, तो ये कंसिडर करेगा कि एंड तक इसे जाना है। तो और ये सिंपली एंड तक जाएगा। ये सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका मैं दिखाता हूँ। ये 3:8 क्या करेगा, ये 7+1 तक जाएगा, मतलब 7+1 तक जाएगा, 8 तक जाएगा, मतलब ये यहाँ इस एंडिंग कोलोन तक जाएगा। और यहाँ पे मैंने कोलोन के बाद कुछ नहीं लिखा है। लेट्स सी, देखिए मैंने 3:8 लिखा था, वो भी सेम काम कर रहा है, और ये यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था कोलन के बाद, वो भी सेम काम कर रहा है। तो अगर आपको एंड तक चाहिए, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके एंड तक, एंड का जो इंडेक्स है वहाँ तक जाना है आपको, वहाँ तक की चीज़ें प्रिंट करनी है, तो एक सिंपल सा तरीका होता है स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंड, एंड में अगर आपको एंड में कुछ मत डालो, स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन और फिर ब्रैकेट क्लोज, सिंपल सा तरीका। ठीक, अब स्ट्रिपिंग का एक तरीका और होता है, जैसे कि ये तो इतना हुआ कि हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके एक दूसरे पर्टिकुलर इंडेक्स तक चाहिए, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन स्टेप बिटवीन द वैल्यूज। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कि आप ये भी कर सकते हो कि आप स्टेप कर दो, कुछ वैल्यू स्किप भी कर सकते हो। जैसे आपने ए से स्टार्ट किया, तो आपने स्किप कर दिया बी को, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो आप ए से शुरू कर रहे हो तो आप बी को स्किप किए, फिर सी को स्किप किए, फिर वापस से 9 से वापस से शुरू कर रहे हो। आप एक पर्टिकुलर स्टेप वैल्यू लेके चलोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो और आपने स्टेप की वैल्यू रखी हुई है 1, स्टेप की वैल्यू रखी हुई है 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने स्टार्ट किया ए से, तो ये क्या करेगा पाइथन, स्टेप की वैल्यू अगर आपने 2 रखी हुई है, तो ए के बाद जो सेकंड एलिमेंट है, ए के बाद जो सेकंड वर्ड आएगा, ये ए है, ए के बाद फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, बी, और ए के बाद सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, सी। तो अगर आपने स्टेप की वैल्यू 2 रखी हुई है, तो ये प्रिंट करेगा सी को ए के बाद, फिर ये सी को प्रिंट करने के बाद चेक करेगा सी के बाद जो सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, सी के बाद फर्स्ट एलिमेंट है 9, सी के बाद सेकंड एलिमेंट आ रहा है 8, तो यहाँ पे अब 8 को प्रिंट करेगा वो। अब 8 के बाद सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 8 के बाद फर्स्ट एलिमेंट है हैशटैग, और 8 के बाद सेकंड एलिमेंट है डॉलर, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा डॉलर को। तो ये होता है स्टेप की का मतलब, स्टेप करने का मतलब कि एक वैल्यू के ऊपर आप, मतलब एक वैल्यू से आपने शुरू किया, बट अब उसके जस्ट बाद वैल्यू को स्टेप कर रहे हो, उसके ऊपर एक कदम रख के दूसरी वैल्यू के ऊपर जा रहे हो, स्टेप अप कर रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि आप एक वैल्यू पे शुरू किए, फिर इसके ऊपर से कूद गए और यहाँ पे आ गए आप सी पे। इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पे हमने स्टेप की वैल्यू अगर 2 रखी है, तो यहाँ से जा रहा है ए से शुरू कर रहा है और बी को जंप किया, बी पे स्टेप किया, स्टेप अप किया और आ गया सी पे। ठीक, बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ए के बाद जो पहला एलिमेंट है उसे प्रिंट करो। तो ए के बाद पहला एलिमेंट आता है बी, तो बी को प्रिंट कर देता है, बी के बाद पहला एलिमेंट सी, तो वो सी को प्रिंट करता है। तो ये ऐसे ही चलता है। सो नाउ इफ यू वांट टू स्टेप फ्यू एलिमेंट्स, तो उसके लिए उसका एक फॉर्मेट ये होता है, वो इसी में होता है, इसी जो वेरिएबल नेम स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स +1 हमने किया है, इसी के अंदर एक छोटा सा एडिटिंग हमें करना है, और बस वो उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग का टॉपिक। बस इतना सा सिंपल होता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल का नाम, स्टार्टिंग इंडेक्स START अंडरस्कोर इंडेक्स, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स। अब हमेशा की तरह जैसे नीचे आपने किया स्टार्ट इंडेक्स फिर एंड इंडेक्स +1, उसके बाद आप वापस एक कोलोन डालोगे और यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप की वैल्यू। तो आप मुझसे पूछो कि भाई आपने तो ये बोला कि आपने जो पहले बताया था यहाँ पे तो आपने स्टेप की वैल्यू लिखा ही नहीं, तब भी ये तो ऐसे ही प्रिंट हुआ था, तब भी तो ये नॉर्मली प्रिंट हुआ, यहाँ पे अब आप लिखवा रहे हो इस चीज़ को, तो कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। तो सुन भाई, सिंपल सी बात,
बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, तो उसे हमेशा बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और पाइथन खुद बोलता है कि स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो उसे बार-बार लिखना क्यों मेहनत क्यों करना एक्स्ट्रा। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके एक दूसरे स्पेसिफाइड इंडेक्स तक जाना है, तो बार-बार स्टेप की वैल्यू क्यों लिखना। लेकिन अगर आपको कुछ वैल्यूज़ के ऊपर स्टेप अप करके जाना है, तब आप स्टेप की वैल्यू लिखोगे तो उसे कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप अंडरस्कोर वैल्यू, स्टेप की वैल्यू, कि कितनी वैल्यू छोड़ के हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं डालूँ, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं अगर 8 कर दूँ, तो ये नॉर्मली प्रिंट करना चाहिए 98 हैशटैग डॉलर और ये एंडिंग कोलन। ठीक, ये प्रिंट इतना ही करेगा जैसे यहाँ पे इसने किया था। अब चलिए आपके लिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे स्टेप की वैल्यू 1, तब भी देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि स्टेप वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए के बाद पहला एलिमेंट जो है उसे प्रिंट कर दो, बी के बाद जो पहला एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दो। सो लेट्स सी दिस थिंग, देयर विल बी नो चेंज। देखिए पहले हमने क्या किया था 3:8, और हमने स्टेप की वैल्यू नहीं रखी थी 1, तब भी वो नॉर्मल वही प्रिंट किया, और हमने जब यहाँ स्टेप की वैल्यू 1 डाली तब भी वही चीज़ प्रिंट कर रहा है, तो वही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 हम नहीं यूज़ करते हैं, फालतू में मेहनत ही बोलना। बट अगर हमें पर्टिकुलरली कुछ एलिमेंट्स के ऊपर से स्टेप करना है, यहाँ पहला एलिमेंट नहीं, ए के बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसे प्रिंट करो, ए के बाद जो तीसरा एलिमेंट है उसे प्रिंट करो, तो उसके लिए उस जगह पे हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मुझे क्या चाहिए, ए के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो चाहिए, सी के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो चाहिए। ठीक, ऐसे करते करते चला ये पूरा लूप। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ स्टार्ट करो 0 से, भाई मुझे कुछ नहीं दिक्कत है, मुझे कहीं 3 से नहीं स्टार्ट करना है। ठीक, सिंपली यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, एंड इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स या 7, 7 प्लस 1 8। ठीक, 8 के बाद मैं क्या करूँगा, स्टेप की वैल्यू मैं 2 रखूँगा, तो ये क्या करेगा, ए के बाद जो सेकंड एलिमेंट है, ए के बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, सी, तो सी को प्रिंट करेगा, सी के बाद जो सेकंड एलिमेंट है 8, वो 8 को प्रिंट करेगा। यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, आना तो चाहिए ए सी 8 और डॉलर, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। सो देखिए प्रिंट क्या हुआ, ए सी 8 डॉलर, हमने यहाँ पे स्टेप की वैल्यू 2 रखी थी, तो ए के बाद जो सेकंड एलिमेंट है सी, उसमें प्रिंट हुआ, सी के बाद सेकंड एलिमेंट है 8, वो प्रिंट हुआ, और ऐसे करते करते डॉलर तक गया ये। ठीक है, चल भाई ये भी ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे, मैंने आपको अभी बोला कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चलो मैं इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स भी हटा दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, कंसिडर क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे मैंने कोलॉन के पहले कुछ नहीं लिखा ना, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, और एंड कहाँ करेगा, यहाँ पे कोलॉन के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो एंड करेगा एकदम लास्ट वैल्यू पे ले जाके, पूरा पूरा चलेगा लूप, पूरे जितनी लेंथ है इसकी पूरा उतना चलेगा, ये 8 है ना लेंथ इसकी, तो ये 8 बार चलेगा ये लूप, और प्रिंट करते जाएगा, ये अपना काम 8 दफ़ा करेगा और प्रिंट कर जाएगा, और देख रहे हैं एक बार एकदम सेम वैल्यू आई। तो आपके लिए मैं इसको बगल में जो हमने अभी पहली वैल्यू डाली उसको भी डाल दे रहा हूँ। पहली वैल्यू हमने कैसे डाली थी, स्ट्रिंग का नाम लिखा था, वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग, उसके बाद 0 8 जो है एंडिंग वैल्यू, और 2। ठीक है, लेट्स सी दिस थिंग। तो ये देखो वही चीज़ हुई, हमने यहाँ पे 0 नहीं डाला क्योंकि वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, और हमने यहाँ पे 8 नहीं डाला था क्योंकि वो एंडिंग इंडेक्स है, तब भी वैल्यू सेम आई। तो ये चीज़ यू कैन keep it in your mind that every time it is not necessary to write the starting index and the ending index if it is the last thing, these are the corner cases, you don't need to write the starting and the ending index। अगर कॉर्नर केसेस है, अगर लास्ट वैल्यू है और पहली वैल्यू है, पहले इंडेक्स लास्ट इंडेक्स और पहला इंडेक्स है, तो ज़रूरत नहीं है होती लिखने की, आप उसे एम्प्टी छोड़ देंगे तब भी वो चलेगा। ठीक है, चलो भाई ये भी ठीक है। अब अब मेरा मन कर रहा है कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना तूने यहाँ पे, मुझे पूरा उल्टा प्रिंट करके दिखाइए, मुझे ये चीज़ पूरी उल्टी चाहिए। तो इसके लिए एक इंडेक्स का फैक्टर ये होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ए का इंडेक्स यहाँ 0 है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ए का इंडेक्स 0 है, बी का 1 है, सी का 2 है, और ऐसे करते करते इंडेक्सिंग जाती है। वैसे ही अगर हम एंडिंग से देखा जाए तो क्या इंडेक्स होगा, अगर हम एंडिंग से देखें तो इंडेक्सिंग होती है नेगेटिव से स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा था कोई नॉर्मल आदमी होगा वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे कि ए का इंडेक्स 1 है, अगर उसने पाइथन वाइथन कुछ नहीं पढ़ी, वो एकदम कक्षा 8 का आदमी बंदा है, बच्चा है, कक्षा 8 का बच्चा ही होगा ना, बंदा कैसे हो सकता है, कक्षा 8 का बच्चा है वो, क्लास 8 का, तो वो क्या समझेगा कि एज कौन सी इंडेक्स पे, फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है, सी थर्ड पे है, ऐसे ऐसे, जब तक अगर हम उसे बताएं ना कि पाइथन में भैया होता है शुरुआत कहाँ से, 0 से, तो देखा भाई पाइथन में होता है स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से, तो वो भी समझ जाएगा, चल भाई ठीक है 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से लेके मैं बढ़ाते जाऊँगा, जहाँ पे एंड है वहाँ मैं बंद कर दूँगा। तो ये हुआ स्टार्टिंग इंडेक्सिंग, स्टार्ट इंडेक्सिंग फ्रॉम द स्टार्ट। अगर मुझे इंडेक्सिंग अंत से करनी है, एंडिंग से मुझे इंडेक्सिंग करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए इंडेक्सिंग का फैक्टर ये होता है कि एंड से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है नेगेटिव के टर्म्स में, और नेगेटिव के टर्म्स में एंड से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से ही। तो यहाँ पे था क्या, शुरुआत से करते वक्त 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी, बट लेकिन एंडिंग में पाइथन ने क्या किया कि चल भाई ठीक है एंडिंग में हम करते हैं 1 से इंडेक्सिंग स्टार्टिंग। तो भाई इतना क्यों माथा पच्ची करना है, अगर भाई पाइथन वालों क्यों इतना तुमने दिमाग लगाया फालतू में, करना चाहिए था 1 से, तो स्टार्टिंग से भी 1 से करते अगर एंडिंग से 1 से कर रहे हो तो।
बट लेकिन छोड़ो भाई, पाइथन है, हो चुका जो हो चुका। सो एंडिंग से शुरुआत होती है इंडेक्सिंग की इन नेगेटिव फॉर्मेट एंड फ्रॉम वन। मतलब ये जो सेमी कॉलन है, एंडिंग कॉलन है ये, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी -1। जो डॉलर है ये, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी -2। ये 5 दिया हुआ है, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी -3। जो 4 दिया हुआ है, सॉरी, जो हैशटैग दिया है इसकी इंडेक्स वैल्यू -3। ये जो 8 है इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी -4। जो 9 दिया हुआ है इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी -5। जो सी दिया हुआ है इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी -6। जो बी दिया हुआ है इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी -7। और ये जो ए है, जो पहला लेटर है, पहला एलिमेंट है हमारा, उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है, ठीक। ये याद रखना कि स्टार्टिंग से जब इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 0 से होती है और पॉजिटिव फॉर्मेट में। बट द क्लिक बेट इज हियर दैट जब एंडिंग से इंडेक्सिंग शुरू होती है तो वो नेगेटिव फॉर्मेट में शुरू होती है और वो स्टार्टिंग होती है 1 से। अगर आप स्टार्टिंग से इंडेक्सिंग कर रहे हो तो पॉजिटिव में होगी 0 से, एंडिंग से कर रहे हैं तो नेगेटिव में होगी 1 से। ठीक है, इतना याद रखो बस भाई, बस बहुत हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम सेम तरीका यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ इन दोनों लाइन्स को। तो देखिए कमेंट आउट भी सिखा देता हूँ अभी। कमेंट आउट करने का एक तरीका होता है, हैशटैग डाल दो, लाइन के पहले हैशटैग डाल दो, या फिर जैसे मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआत में 3 इन्वर्टेड कॉमास डाले हुए हैं और यहाँ एंड में मैंने 3 इन्वर्टेड कॉमास डाले हुए हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कमेंट हो गया। ये कमेंट आउट करने का दूसरा तरीका होता है। ये 2 तरीके होते हैं पाइथन में कमेंट आउट करने के। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग के थ्रू, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, 3 इन्वर्टेड कॉमा ऊपर, 3 इन्वर्टेड कॉमा नीचे, और बीच में आपको पूरा जो मैटर लिखना है वो पूरा कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने किया, पहला लाइन कमेंट आउट हो गया हैशटैग से, दूसरा भी हो गया। सो लेट्स प्रिंट द सेम थिंग। यहाँ पे हमने जो प्रिंट किया था, यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया था, हमने यहाँ पे प्रिंट किया था $8। सो लेट्स प्रिंट द सेम थिंग। लेट्स ट्राई। हमने पहले पॉजिटिव से स्टार्टिंग से प्रिंट करना शुरू किया था। लेट्स प्रिंट द सेम थिंग। बट यहाँ पे एक चीज़ बस अलग है कि इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव में और 1 से स्टार्ट हुई है यहाँ पे। वहाँ पे था कि स्टार्टिंग से हुई थी तो पॉजिटिव में थी, 0 से स्टार्ट हुआ था। सो बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हैं नेगेटिव के फॉर्मेट में, एंड दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम -1 फ्रॉम द एंड। मतलब ए का जो इंडेक्स है वो -8 है। ठीक है, लेट्स सी दिस थिंग। तो ए का इंडेक्स क्या है, -8। तो -8 से शुरू करो, कहाँ तक जाना है आपको, अपने को जाना है एंड इंडेक्स तक। तो एंड इंडेक्स में मैंने अभी बोला यहाँ पे ऊपर इंडेक्स पर लिखने की जरूरत नहीं होती अगर कॉर्नर हो तो। बट मैं यहाँ पे -8 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ याद रहे कि हम नेगेटिव के टर्म्स में हम ये इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंड इंडेक्स है तो मैं एंड इंडेक्स नहीं लिख रहा हूँ, ये फालतू में क्यों लिखना है यहाँ पे। और स्टेप की वैल्यू कर दो 2। ठीक है, स्टेप लेके चलेगा 2। तो -8 जो कि है ए, रिप्रेजेंट करता है ए को, नेगेटिव इंडेक्स 8 रिप्रेजेंट करता है ए को। तो ए से सेकंड वैल्यू सी, सी से सेकंड वैल्यू 8, और ऐसे ऐसे करते करते भाई प्रिंट करते हैं हर चीज़। चल ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने -8 इसलिए लिखा था क्योंकि ये नेगेटिव के फॉर्मेट में है, ये चीज़ प्रिंट हो रही है नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। बस ये चीज़ आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम देखें तो -8 पे था ए, तो और स्टेप लेके चल रहा है ए 2 का। तो इसने प्रिंट कर दिया -a के बाद, ए के बाद जो भी सेकंड एलिमेंट है उसको, और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है उसको। ए के बाद सेकंड एलिमेंट है सी, सी के बाद सेकंड एलिमेंट है 8, 8 के बाद सेकंड एलिमेंट है डॉलर। तो ऐसे करते करते उसने $80 को प्रिंट कर दिया। तो बस भाई ख़त्म। इतना ही था अपना स्ट्रिपिंग का, स्ट्रिपिंग था स्ट्रिंग्स के अंदर, सिंपल था। तो भाई सुन, अगर हमें करनी भी है ना स्ट्रिपिंग, तो हम इसलिए हर कोई करता है स्ट्रिपिंग पॉजिटिव टर्म्स में, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स में करना दिक्कत का काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कभी कभी एरर आ जाता है। तो मैं आई विल सजेस्ट कि हमेशा जब भी स्ट्रिपिंग करो स्ट्रिंग के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में करना। मैं भी पॉजिटिव में ही करता हूँ। जब कहीं लिखा हो, कहीं ज़रूरत पड़े नेगेटिव के करने की किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तब नेगेटिव से तक जाते हैं। और एक चीज़ ये चीज़ याद रखो कि जैसे यहाँ पे मैं -8 मैंने रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे गाय जैसे यहाँ पे डालना चाहिए -1 है लास्ट इंडेक्स, तो मेरे को यहाँ पे 0 डालना चाहिए, -1 + 1 0। बट अगर हम यहाँ पे मैं डालूँ 0, लेट्स सी, बस देखना यहाँ पे क्या आउटपुट है। और ये तो मैं यहाँ पे कर रखता हूँ 0 वाला। उसके साथ साथ मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो हम चाहते हैं आउटपुट आए, जो हम सोच रहे हैं, और आउटपुट क्या आएगा 0 रखने से, वो देखना बस। देखो AC8, अरे यहाँ पे तो मैंने 0 डाला ही नहीं। हाँ भाई आजा, अब देख। ये देखो, पहले ये जो आउटपुट है पहली लाइन में है $8 दिख रहा है। रुको मैं ढंग से करता हूँ, थोड़ा ऊपर आ जाएगा इस बार। देखो ये क्या चीज़ हुई, ये जो पहली लाइन का आउटपुट है $8 डैश डैश, ये है पॉजिटिव फॉर्मेट में हमने जो किया था। जो नेगेटिव फॉर्मेट में हमने किया था -8::2,
उसका तो सही आउटपुट आया $88 लेकिन हमने जब यहाँ पे बीच में ज़ीरो डाला तो देखो आउटपुट ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये -8 से ज़ीरो, ज़ीरो लास्ट इंडेक्स किसके एंड इंडेक्स पे किसके आ गया? ज़ीरो एंडिंग इंडेक्स है ए का, तो -8 जो कि ए, तो ए से चल के तुम वापस से ए पे आ गए, तो लूप शुरू ही नहीं हुआ, वो प्रिंट ही नहीं करेगा कुछ। अगर तुम्हें ए से शुरू करना है और वापस से ए पे ही आ रहे हो, -8 भी ए का इंडेक्स है, ज़ीरो भी 8 का इंडेक्स है, तो भाई जब तुम्हारा पूछ और सर एक ही है, तो तुम चलोगे कहाँ पे? तुम दिखोगे कैसे? तो वही हुआ, सिंपल सा, इसलिए प्रिंट ही नहीं हुआ कुछ। लेकिन अगर हम यहाँ पे -1 डालेंगे तब ये प्रिंट हुआ, लेकिन डालना तो मुझे +1 करके चाहिए था। यही दिक्कत है नेगेटिव इंडेक्स के साथ खेलने में, कि नेगेटिव इंडेक्स में तुम +1 नहीं कर सकते, जो है जैसा है वैसे ही डालो। लेकिन पॉजिटिव इंडेक्स में ये आ जाता है कि +1 करो। यहाँ पे एंडिंग कोलन का जो इंडेक्स था वो 7 था, तो हमने यहाँ पे +1 8 करके डाला, तब ये सही आउटपुट दिया। तो बस यही था भाई आज के लिए, यही था बस स्ट्रिपिंग स्ट्रिंग्स के अंदर, इतना ही था बस स्ट्रिपिंग स्ट्रिंग्स के अंदर, इतना हुआ स्ट्रिपिंग स्ट्रिंग्स। तो मैं यही जनरली रिकमेंड करूँगा, पॉजिटिव में ही हमेशा करो जो भी काम करो, नेगेटिव में करने जाओगे तो दिक्कत आ जाती है कभी भी, ठीक। तो ये हुआ स्ट्रिपिंग स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में ली थी 2 स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग नंबर 1 ये था ABC 98। अच्छा रुको, एक चीज़ और, मैं बस एक चीज़ भूल गया, सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया। अगर तुम्हें प्रिंट करानी है इस पूरी स्ट्रिंग को इन रिवर्स ऑर्डर, एक क्वेश्चन आया था एक इंटरव्यू में कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसको आपको इन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करानी है, मतलब ये ABC 98 #$ एंडिंग कोलन ना, ये एंडिंग कोलन से शुरू होकर ए तक आए, तो उसके लिए क्या करोगे? तो इस टाइम पे काम आता है नेगेटिव इंडेक्स वाली चीज़ का। नेगेटिव इंडेक्स का क्या, सिंपल सा नेगेटिव इंडेक्स भी नहीं इसमें, सिंपल सा काम आता है बहुत ज़्यादा स्टेप वैल्यू का, सिर्फ यहाँ पे स्टेप वैल्यू का काम होता है। स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखो यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारा क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव तरीके से लेके चल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव तरीके से भी पॉजिटिव, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स में यहाँ पे मैंने क्या किया था, नहीं लिखा था, क्योंकि हमें 2 का स्टेप जब लेके चले तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखा था, क्योंकि हमें पूरे स्ट्रिंग के अंदर काम करना है जो भी करना है, ठीक। और जो भी हमने यहाँ पे छेड़छाड़ किया था वो स्टेप वैल्यू से किया था, तो उसी के थ्रू हमें $88 मिला था। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। यहाँ मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दूँ या एंडिंग इंडेक्स 8 दूँ, उसको कोई मतलब नहीं है, फालतू में दूंगा तब चलेगा, तब भी। बट यहाँ पे अगर मैं, बट मेन काम यहाँ पे पता है किसका है, मेन काम यहाँ पे स्टेप वैल्यू का, स्टेप वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा -1। क्यों? ये स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से, चिल। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से इट विल स्टार्ट, और ये देखेगा एंडिंग इंडेक्स तक जाना है, इसको 8 एंड तक जाना है, एंड इंडेक्स 8 और 9 और 10 कहाँ तक भी हो, पूरे जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की उतना तक ही चलेगा। तो स्टार्टिंग है ए, एंड में है ये एंडिंग कोलन। बट यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमेशा हम देखते हैं पॉजिटिव, हमने यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू 2, और बाई डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू रहती है 1, और यहाँ पे हमने सेट की थी स्टेप वैल्यू 2, यहाँ यहाँ पे हम स्टेप वैल्यू डाल रहे हैं -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे जो, ये तो हमेशा 2 लेके हम 1 लेके चल रहे थे, तो इसका मतलब होता था कि ए के बाद जो पहला एलिमेंट आए उसे प्रिंट करो। अब हम यहाँ पे -1 लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के पहले जो पहला एलिमेंट था, ए के पहले जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करो। यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, मैं क्लियर करता हूँ। तो ए की इंडेक्स वैल्यू है 0। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को उल्टा करना चाहें तो ये किस तरीके से कर, ऐसे एंडिंग कोलन डॉलर हैशटैग और 98 89 98 तो 89 हो जाएगा, और CBA, ठीक। तो ये क्या करेगा, 1 था तो मतलब इसका मतलब था कि ए के बाद जो पहला एलिमेंट है, अब यहाँ पे है कि -1 है, तो ए के पहले जो एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि लास्ट में चले जाओ, लास्ट का जो एलिमेंट है ए के पहले अगर हम जाना है तो हम आएंगे लास्ट में, और लास्ट का जो एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दो। स्टेप वैल्यू -1 का मतलब यही होता है कि ए के जस्ट पहले जो एलिमेंट आया था उसे प्रिंट करना है। ए के जस्ट पहले अगर हम देखें तो ए तो भाई पहला एलिमेंट है, उसके पहले कैसे कुछ आ सकता है, बेसिक डाउट यही रहेगा, मेरा भी बेसिक डाउट यही था जब मैं ये पढ़ा था रिवर्सिंग। बट ये चीज़ हमें देखनी होगी, ए के पहले अगर हमें जाना है तो हम जाएंगे एंड में, रिवर्सिंग करते वक्त हमें प्रिंट करना है, तो हम ए के पहले का जो एलिमेंट है वो मानेंगे कोलन, और कोलन है ए के पहले का एलिमेंट, तो कोलन को प्रिंट कर दो। अब आगे बढ़ो, हमने लिया कोलन, ये कंसिडर करेगा कोलन को, एंडिंग कोलन को। अब इसके पहले जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो, जो कि है डॉलर, ठीक। अब ये डॉलर को प्रिंट करेगा, डॉलर के पहले जो एलिमेंट है उस पर आओ, हैशटैग को प्रिंट करेगा, हैशटैग के पहले जो है 8 को प्रिंट करो। अब ऐसे करते करते सबको प्रिंट कर देगा, ठीक है। बस सिंपल सा इतना ही सा था। रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए पे जाएगा ये ए के पहले जो एलिमेंट है उस पर आएगा, स्टेप वैल्यू -1 है, तो ए के पहले जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करो, एंडिंग कोलन। अब यहाँ पे उल्टा घूम जाएगा और यहाँ पे एंडिंग कोलन पे आके रुक जाएगा, एंडिंग कोलन के पहले जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करो डॉलर, और डॉलर के पहले हैशटैग के पहले 8, तो 8 को प्रिंट करो।
इसे करते करते ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा और यहाँ पे ए पे आके रुक जाएगा। ठीक, बस सिंपल सा इतना ही था। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। हमने एंडिंग सेमी कोलन और सॉरी कोलन और -1 डाला है। तो देखो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग थी ABC98 हैशटैग डॉलर कोलन, एंडिंग कोलन तो सेमी कोलन ही बोलते हैं उसे। अब यहाँ पे हमने जो प्रिंट किया उसे रिवर्स किया तो ये आ गई सेमी कोलन डॉलर हैशटैग 89 CBA। तो ये काम कैसे किया समझ में आया? ए पे था, ये ए पे स्टार्टिंग की, ए के पहले जो एलिमेंट है उसके लिए पीछे घूमेगा, आएगा यहाँ पे सेमी कोलन पे आया। अब सेमी कोलन के पहले जो एलिमेंट सेमी कोलन को इसने प्रिंट किया, सेमी कोलन के पहले क्या है डॉलर, डॉलर को प्रिंट कर रहा हूँ और ऐसे करते करते सब कुछ प्रिंट कर देगा। आई नो इट्स गेटिंग अ वेरी बिग लेक्चर but yeah, it will be worth it. So let's now study about the operation that we can perform over these strings. So there's the first operation that we can perform is concatenation. मतलब हम जोड़ सकते हैं दो स्ट्रिंग को, पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग, इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया S1 A, दूसरी स्ट्रिंग हमने ले ली यहाँ पे B और तीसरी स्ट्रिंग हमने ले ली यहाँ पे C। अब हमें प्रिंट करना है, अब हमें इन तीनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना है। तो इसके लिए हम सिंपल से कर सकते हैं S1 + S2 + S3। तो ये क्या कर देगा, इन तीनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा। सिंपल, देखिए यहाँ पे S1 में था 1, S1 में था A, S2 में B, S3 में था C, ऐड हो गया ABC। रेप्लिकेशन भी होता है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। दो स्ट्रिंग्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट एक स्ट्रिंग को, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली है S1, हमें उसे रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट का मतलब उसे कई बार लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसे रेप्लिकेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे A 5 बार चाहिए तो मैं उसे 5 बार लिखने के लिए A को इंटू 5 कर दूंगा तो ये 5 बार आ जाएगा। इंटू 5, A 5 टाइम्स हो गया। So these are some simple operations that we can perform. Okay. तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने बनाई थी पहले जिसका जिसका वेरिएबल नेम था स्ट्रिंग और इसके अंदर था ABC98 हैशटैग डॉलर एंड जो भी था। ठीक, अब तीसरा ऑपरेटर हमारे यहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर, उसके लिए मैं इस स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ। तो मेंबरशिप ऑपरेटर ये होता है कि पहला वेरिएबल है हमारे पास एज ए स्ट्रिंग, पहला वेरिएबल हमारे पास है एज ए स्ट्रिंग, उसके अंदर ABC98 हैशटैग डॉलर। दूसरा वेरिएबल है हमारे पास S, उसके अंदर है स्टोर एक स्ट्रिंग A। ठीक, मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इन और नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं दो टाइप के, इन और नॉट इन, जिसमें होता है कि हम ये चेक करें कि एस के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ये जो स्ट्रिंग है वो तो कन्फ्यूजन जा रहा है बार। चलो मैं इसको S2 ले लेता हूँ, इसको S1 ले लेता हूँ। S1 के अंदर जो वैल्यू है अगर वो S2 के अंदर जो वैल्यू अगर वो S2 के अंदर भी है तो इट विल प्रिंट ट्रू। रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट बूलियन ऑपरेटर्स जो कि थे सिर्फ दो टाइप्स के, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, नाउ वी आर स्टडीइंग गोइंग फॉर द सेम केस। यहाँ पर मुझे देखना है, चेक करना है कि S1 इन S2 येस और नो। अगर येस तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा एंड इफ नो तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। और दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर है नॉट इन, S1 नॉट इन S2, जिसका मतलब ये होता है कि S1 अगर S2 में नहीं है तब ट्रू प्रिंट करो और अगर S2 S1 में है तब फॉल्स प्रिंट कर दो। ठीक, इन एंड नॉट इन, इनका मतलब अगर है तो ट्रू, अगर और नॉट इन का अगर नहीं है तो ट्रू। और S1 होती है हमारी प्राइमरी स्ट्रिंग जिसको हम चेक करते हैं और S2 होती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रिंग जिसमें हम चेक करते हैं। सेट सीधे से S1 इन S2, ये यहाँ पे जो हमारा A है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है ये A है, ये चेक किया S1 क्या S2 में प्रेजेंट है, S2 है ABC98 हैशटैग डॉलर और इसका पहला ही एलिमेंट है A। तो S1 तो है S2 के अंदर, ये जो A है वो भी यहाँ पे S2 के अंदर है, तो इसने S1 इन S2 का आउटपुट दिया ट्रू। अब सेकेंड लाइन थी हमारी S1 नॉट इन S2 कि अगर S1 S2 के अंदर नहीं है तब ट्रू दो और अगर S1 नॉट इन S2 का मतलब ये कि अगर S1 S2 के अंदर नहीं है तब ट्रू दो और अदर केस में फॉल्स दे दो। तो यहाँ पे इसने चेक किया कि S1 S2 के अंदर है क्या, सॉरी S1 S2 के अंदर नहीं है। तो भाई इसने चेक किया, अरे S1 तो S2 के अंदर है, तो यहाँ पे ये ट्रू तब देता जब यहाँ पे S1 S2 के अंदर नहीं होता। ओके, आई एम गेटिंग दिस दैट इट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। सिंपल, नॉट इन का मतलब होता है नेगेटिव होने का वो पैसा देगा। मतलब मान लो एक पॉजिटिव बंदा है, वो पॉजिटिव होने का पैसा तुमको देगा पूरा टाइम, तुम उससे पॉजिटिव बातें करो तब वो तुमको पैसा देगा, नहीं तो वो नहीं देगा, नेगेटिव बातें करोगे। और नॉट इन एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें नेगेटिव होने का पैसा देगा। तुम नेगेटिव बातें करो से भाई बंदी छोड़ के चली गई, भाई फेल हो गया मैं सेमेस्टर में, वो नेगेटिव बातें करने का पैसा देगा नॉट इन ऑपरेटर। और इन ऑपरेटर क्या करेगा, तुम्हें पॉजिटिव बातें करने का पैसा देगा। ठीक, तो वैसे ही इन ऑपरेटर क्या है, तुम इसे जितना पॉजिटिव बोलोगे कि अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू का मतलब पॉजिटिव, S2 के अंदर S1 है तो मतलब पॉजिटिव है तो वो ट्रू देगा। और नॉट इन क्या बंदा है, उसको चाहिए नेगेटिव चीज़ें, अगर उसे नेगेटिव मिलेगा तो वो ट्रू देगा, अगर उसे नेगेटिव नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स देगा। तो नॉट इन ऑपरेटर क्या किया, चेक किया S1 के अंदर S2 है कि नहीं,
तो उसने चेक किया, अबे यार साला ये तो S1 के अंदर S2 है, मतलब ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है, तब तो मैं इसे ट्रू दूंगा नहीं, तब तो मैं इसे फॉल्स दूंगा। तो सिंपल से यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया, बस झक्कास, चमका, सिंपल सा था भाई ये तो। ये हो गया कॉन्कैटेनेशन, दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं हम। रेप्लिकेशन, एक स्ट्रिंग को हम किसी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि किसी नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। ए है, ए को हमें 5 बार प्रिंट करना है, तो ए इंटू 5 करेंगे तो रेप्लिकेट कर देगा। रेप्लिकेशन का मतलब तो सिंपल सा भाई इतना होता है, मैं तो यूपी से हूँ, इतना मेरे को रेप्लिकेशन का मतलब पता है। भाई कुछ और होता होगा तब मुझे नहीं पता, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। ठीक, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन। इन एक पॉजिटिव बंदा है जो तुमको पॉजिटिव बातें करने का पैसा देगा, नॉट इन एक नेगेटिव बंदा है जो नेगेटिव बातें करने का पैसा देगा, मतलब नॉट इन नेगेटिव हुआ आंसर तब वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक, इतना हमें। अब एक चौथा है ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर है चौथा, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये कहता है कि जैसे, चलो मैं इसी में दिखाता हूँ। S1 एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए, S2 एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ABC एंड बहुत कुछ। चलो ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में होते हैं दो तरीके के ऑपरेटर, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे मैंने ये बोला, ये होता है सिमिलरली इन और नॉट इन की तरह। नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क फिर इक्वल टू का सिंबल। ठीक, S1 इक्वल टू S2 पहला है, और S1 नॉट इक्वल टू S2 दूसरा है। तो S1 इक्वल टू S2 ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे इन ऑपरेटर काम करता था। अगर S1 की वैल्यू S2 के बराबर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। अगर तुम इससे पॉजिटिव बातें करोगे तो तुमको भर भर के पैसे देगा, सारा तुम्हारा सोर्स वाला बंदा बन जाएगा, ये सेटिंग भाई बन जाएगा, भाई तू जो बोलेगा वही सही है। लेकिन अगर तुम इससे नेगेटिव बातें की है, मतलब S1 की वैल्यू S2 के बराबर नहीं है, तब तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक, दूसरा है ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इन वाला बंदा ही है, नॉट इन, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। ये क्या करेगा, अगर ये वैल्यू, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब S1 S2 के बराबर नहीं है तब ये ट्रू देगा, और S1 अगर S2 के बराबर है तो ये फॉल्स देगा। ठीक, मतलब ये तुम नेगेटिव बातें करोगे इससे तभी ट्रू देगा, नेगेटिव बातें नहीं करोगे, पॉजिटिव बातें करोगे तो ये फॉल्स देगा। तो इतना हुआ भाई ऑपरेटर्स। चार तरीके के ऑपरेटर्स हैं। पहला था एडिशन, दूसरा रेप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही मैं मानता हूँ उसको भाई, इतना मैं हाई फाई इंग्लिश नहीं पढ़ता, नहीं आती है। तीसरा है इन नॉट इन, मेंबरशिप, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इन एंड नॉट इन ऐसे याद रख लो। और दूसरा है, चौथा है इक्वल टू, मतलब कंपैरिजन, कंपेयर कर लो S1 S2 बराबर, तो भाई सही बात है ट्रू दे दो, S1 S2 बराबर नहीं है तो फॉल्स दे दो, बस खत्म। इक्वल टू मतलब इन ऑपरेटर की तरह काम करेगा, नॉट इक्वल टू नॉट इन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक, नाउ द लास्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग फंक्शंस। सो लेट्स स्टडी दिस थिंग आल्सो। स्ट्रिंग के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है स्ट्रिंग, और इसे लिखने का तरीका होता है वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है स्ट्रिंग को, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम डॉट फंक्शन नेम, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे दो क्लोज सर्कल वाला ब्रैकेट। ये होता है सिंटैक्स, होता है तरीका होता है लिखने का किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को, वेरिएबल डॉट फंक्शन नेम और दो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है सिंटैक्स लिखने का। लेट्स स्टडी दिस थिंग। हाउ मेनी फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनी फंक्शंस, देयर आर लिटरली मेनी फंक्शंस, और सब याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे पहला फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ये फंक्शन क्या करेगा, जो तुम्हारी स्ट्रिंग है, जो तुम्हारा ये S2 ABC98 हैशटैग $, इसकी तुम्हें लेंथ दे देगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट S2 वेरिएबल नेम जिसके अंदर स्टोर है, LENGTH ही होता है ना भाई लेंथ का स्पेलिंग, हाँ भाई यही है, चलो ठीक है। तो ये करेगा स्ट्रिंग का लेंथ दे देगा तुम्हें, S2 वाली स्ट्रिंग का। यहाँ मैं S1 को हटा देता हूँ। सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेंथ, चेंज हो गया क्या, मेरे में नहीं है क्या LENGTH, मे भी मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो शायद से इसमें नहीं है लेंथ का। बट हाँ, एक दूसरा तरीका भी होता है, मैं भाई 3.7.8 यूज़ कर रहा हूँ वर्जन, मे भी शायद से ओल्डर वर्जन में लेंथ का फंक्शन था। बट एक दूसरा तरीका भी होता है लेंथ पता करने का स्ट्रिंग का, वो होता है एलियन। एलियन ये कोई स्ट्रिंग फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे तुम कुछ भी डालोगे। ये स्ट्रिंग के लिए डेडिकेटेड नहीं है, तुम लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट कुछ भी डालो, वो उसका लेंथ बता देगा, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है ये बता देगा। अब मैं लेंथ S2 करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे S2 की जो लेंथ है ABC98 हैशटैग $, इसकी मुझे लेंथ बता देगा। तो लेंथ कितनी है ABC की, इस S2 स्ट्रिंग की, 1 2 3 4 5 8 है लेंथ। सो लेट्स सी यहाँ क्या करता है, मुझे 8 प्रिंट आउट कर दिया। ये होता है लेंथ का फंक्शन। ये स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन शायद से अब वैलिडेट नहीं रहा, पुराने फंक्शन पुराने वर्जन में था पाइथन के, मैं तो फिलहाल 3.7.8 यूज़ कर रहा हूँ। तो
शायद से मेरे में नहीं रही, कोई नहीं, वी हैव द ऑल्टरनेटिव फॉर दैट ऑल्सो। सो हमारे पास दूसरा फंक्शन यहाँ पे है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज ये क्या करेगा, स्ट्रिंग जो भी आप जो इसको देखो वो उसे कैपिटल में इसके जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है उसे कैपिटल कर देगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। सिंपल का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है उसे कैपिटल कर देगा। पहले आप भी इसे अपने कंपाइलर में रन करना चाहिए और चेक करते रहिए मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एस डॉट कैपिटलाइज, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है एस, जिसके अंदर मैंने लिखा है आई लव पाइथन। सो लेट्स सी इसने ये क्या करेगा, आई को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ठीक, यहाँ पे पाइथन का पी भी स्मॉल में था, इसने उससे कुछ नहीं किया, सिंपल से आई को कैपिटल किया, मतलब पहला जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसे कैपिटल कर देगा। तीसरा फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट एल्बम। ये क्या करेगा, अल्फा स्ट्रिंग डॉट इज एल्बम, ये चेक करेगा कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फा न्यूमेरिक है क्या, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो वो ट्रू कर देगा रिजल्ट, और अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये चेक, इसका बेसिकली मीनिंग यही होता है चेक करने का। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अल्फा न्यूमेरिक है तो मैं इसे आई डी कुछ भी डाल देता हूँ और इसमें कुछ लेटर कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, तो ये चेक करेगा स्ट्रिंग डॉट इज एल्बम। ये फंक्शन चेक करेगा कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं आपकी स्ट्रिंग में, अगर आपकी स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। दूसरा है एक फंक्शन डॉट इज अल्फा। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये सिर्फ तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं उनमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी नंबर्स भी तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। सेम इसी तरीके से होता है प्रिंट एस डॉट इज डिजिट। ये क्या चेक करता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं तो इसे ये ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर सिर्फ डिजिट्स हैं, सिर्फ डिजिट्स। डॉट इज अल्फ़ा ये चेक करता है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो तब ये प्रिंट करेगा ट्रू, बाकी ये नहीं करेगा। ठीक, और इसी तरीके से एक और होता है प्रिंट एस डॉट इज स्पेस। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर स्पेस है कि नहीं, सिर्फ स्पेस होना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस हो उसके अंदर तब ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे हमने 5 फंक्शंस लिखे हैं और इन पाँचों 4 फंक्शंस लिखे हैं, चारों का हम यूज चेक करते हैं। तो एस डॉट कैपिटलाइज, इसने आई डी जी आई डी एफ जो भी है इसे आई को कैपिटल कर दिया। ठीक, इज एल्बम, ये चेक करेगा कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों हैं तब ये ट्रू की करेगा प्रिंट, और इसने ट्रू प्रिंट कर दिया क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स नंबर दोनों हैं। इसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं है इस नाम की स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। और यहाँ डॉट इस डिजिट में चेक किया कि इसके अंदर सिर्फ नंबर्स भी नहीं है अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो इसने इसलिए इसको भी फॉल्स कर दिया। और डॉट इस स्पेस ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है उसमें वो एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं, उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं, उसके अंदर स्पेस होना चाहिए एक, तब वो ट्रू देता है। और यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसने फॉल्स दे दिया। ठीक, ये हुए इतने, और भी कई सारे होते हैं। जैसे एक होता है प्रिंट, अगर आपने कोई कैपिटल में दी हुई है एक स्ट्रिंग एस डॉट इज लोअर, तो ये चेक करेगा कि ये लोअर केस में है कि नहीं, अगर लोअर केस में नहीं है तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर लोअर केस में है तो उसे ट्रू कर देगा। सेम इसी तरीके से होती है एस डॉट इज अपर, जो चेक करता है कि स्ट्रिंग अपर केस में है कि नहीं, कैपिटल केस में है कि नहीं, अगर कैपिटल केस में है पूरी स्ट्रिंग तो इसे ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। सेम होता है एक एस डॉट इज टाइटल। एस डॉट इज टाइटल क्या करता है, ये चेक करता है कि टाइटल जैसे होता है किसी स्टोरी बुक का, हमने किसी बुक का टाइटल क्या होता है, जैसे रिच डैड पुअर डैड में जो बुक है उसका टाइटल क्या है, रिच डैड पुअर डैड। ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक है इसका जो टाइटल है, इसके जो जितने भी वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर कैपिटल है, इस पूरे टाइटल के इनके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसका इनका पहला लेटर कैपिटल है। तो डॉट इस टाइटल यही चेक करता है कि आपके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल है तो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कन्वर्जन पार्ट। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं। इनसे एस डॉट अपर एक फंक्शन है कि आपकी स्ट्रिंग जैसी भी हो, जो जैसी भी आपकी स्ट्रिंग उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अगर उसके अंदर लोअर केस लेटर्स होंगे तो उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और उसके अंदर नंबर्स होंगे तो नंबर्स का क्या ही लोअर केस अपर केस, तो उसको तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। सिमिलरली एक होती है प्रिंट एस डॉट लोअर। ये क्या करता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सेम होता है एस डॉट टाइटल। ये क्या करता है कि जितने भी वर्ड्स आपकी स्ट्रिंग के अंदर है उनके पहले लेटर्स को कैपिटलाइज कर देगा। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग। एस डॉट कैपिटलाइज करता था जो भी आपकी स्ट्रिंग है व्हाटएवर इट इज उसके पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करता था, और एस डॉट टाइटल आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसके जितने भी वर्ड्स हैं उनके पहले लेटर को कैपिटल करेगा। So I guess this all is enough for today. Yeah, this is all what we should know. These are all the basic functions in strings, and nearly all the functions in strings. Strings में जितने भी functions होते हैं ये सब तो basic चीज़ें ही हैं. Is alpha is
टाइटल इज लोअर अपर जो भी है, ये दीज ऑल वर बेसिक फंक्शन। एक अच्छा फंक्शन ये है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस का। एक फंक्शन ये भी होता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैंने एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर लिखा है आई लव पाइथन, और मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन को प्रोग्रामिंग से रिप्लेस करना है। तो इसके लिए फंक्शन है एस डॉट रिप्लेस। यहाँ पे हम डालेंगे क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, पाइथन को रिप्लेस करना है, और किस चीज़ से रिप्लेस करना है, प्रोग्रामिंग से रिप्लेस करना है। एंड द सेकंड फंक्शन इज स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, एस डॉट स्प्लिट। ये फंक्शन क्या करता है, आप जो भी इसके अंदर पैरामीटर देंगे उसको ये वो कंसिडर करेगा, और उसी को पर्टिकुलर पैरामीटर को लेकर हर पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर, और आउटपुट हमें मिलेगा एज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई लव पाइथन और बीच में 2 स्पेस है, तो ये आई को उठाएगा और जैसे देखेगा कि आई के बाद स्पेस है तो आई को उठा के एक लिस्ट में डाल देगा। अब ये चलेगा लव पे, LOVE, ई के बाद वापस से स्पेस आया तो ये तो ये लव को उठा के एक लिस्ट में डाल देगा, उसी पर्टिकुलर लिस्ट में डालेगा जिसमें आई को रखा था। अब स्पेस के बाद है वापस से पाइथन, पाइथन पे क्या करेगा, पाइथन के बाद एंड है तो ये पाइथन को अलग लिस्ट में डाल देगा, पाइथन को उसी लिस्ट में डाल देगा एज ए थर्ड एलिमेंट। और इसके अगर अगर मैं डाल दूँ एंड प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पाइथन को उठाएगा, पाइथन के बाद वापस से स्पेस आया तब ये पाइथन को उठा के डालेगा लिस्ट में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्पेस हटा दूँ तो इसने ई के बाद स्पेस देखा तो लव को डाल दिया लिस्ट में। अब यहाँ पाइथन से शुरू हुआ, पाइथन के बाद स्पेस नहीं है, तो चलते जाएगा, एंड के बाद जो एंड में जो डी है, डी के बाद स्पेस आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा, पाइथन एंड को उठा के लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी से स्प्लिट करने वाला एलिमेंट मिला जो हमने यहाँ पे डाला है। ठीक, यहाँ पे पाइथन एंड के बाद स्पेस है, पाइथन एंड को उठाएगा लिस्ट में डाल देगा, और उसके बाद है प्रोग्रामिंग, तो ये प्रोग्रामिंग को उठाएगा और लिस्ट में डाल देगा और स्ट्रिंग खत्म। बस सिंपल सा इतना ही था। लेट्स सी, यहाँ पे हमें चेक करना है एस डॉट रिप्लेस पाइथन प्रोग्रामिंग से रिप्लेस करेगा। सी हम स्पेस डालता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है पाइथन प्रोग्रामिंग से। ठीक, रुको मैं, ठीक है, लेट्स सी द रिजल्ट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं एस डॉट रिप्लेस पाइथन को प्रोग्रामिंग से करते हैं तो आई लेफ पाइथन प्रोग्राम था, तो आई लेफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग हो गया। एंड एस डॉट स्प्लिट क्या किया, जहाँ जहाँ इसे स्पेस मिला वहाँ वहाँ स्प्लिट कर दिया और डाल दिया लिस्ट के अंदर। So these were all the functions and strings and the operators that we studied. These were the we studied 4 operators and these many functions and strings. So this was all for today. Thank you very much.